11वें साल में दाखिल हो गया है, उस वक्त भी बच्चों की एक बड़ी आबादी बुनियादी जरूरतों, खासतौर से शिक्षा से वंचित रह जाती है। इसके चलते देश बेहतरी और तरक्की के रास्ते पर उस रफ्तार से नहीं चल पाता जैसी उसकी क्षमता है। जी हां शुभ्रा, इसलिए देश के शहीद जवानों, सुरक्षा कर्मियों के बच्चों, कोविड जैसी आपदा के शिकार लोगों के बच्चों और कमजोर तबके के जरूरतमंद बच्चों को आज की शिक्षा से जोड़ने का एक नया और बड़ा अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान का नाम है फर्स्ट इन क्लास। जी हां, आज की तारीख में फर्स्ट इन क्लास तकनीक के जरिए बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का क्रांतिकारी हथियार बन रहा है। ये बीड़ा जो है ये 3 संस्थाओं ने उठाया है। ये 3 संस्था हैं रोटरी लिटरेसी मिशन, जस्टिस तनखा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर स्पेशल चिल्ड्रन और ITV फाउंडेशन। बिल्कुल, और इस अभियान के तहत बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन से जोड़ा जाएगा और ऐप का नाम होगा लर्निकेशन। बच्चों को 1 लाख टैबलेट बांटे जाएंगे जो लर्निकेशन ऐप के नाम से होंगे। इस तरीके से बच्चों को आधुनिक शिक्षा आसान, वैज्ञानिक और सहज तरीके से दी जाएगी। जी हां, बिल्कुल। बुनियादी बात यह है कि देश के उन परिवारों के बच्चों जिनके पास साधन संसाधन नहीं है, जो देश की तरक्की में चुनौती माने जाते हैं, उन्हीं बच्चों को आधुनिक शिक्षा से तैयार कर बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर बनाने का एक बड़ा संकल्प लर्निकेशन है और आज इसका आगाज होने जा रहा है। इस मुहिम की शुरुआत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। जी हां, हम जितेंद्र सिंह जी के पास सीधा चलते हैं और उनके आभारी हैं कि उन्होंने इस मिशन को लॉन्च करने के लिए हमें वक्त दिया। जितेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज, न्यूज एक्स और ITV नेटवर्क के सारे चैनलों पे। आपसे आग्रह करता हूं कि इस मिशन का आप शुरुआत करें, अपने विचार रखें। व्हाट इज योर मैसेज सर फॉर दिस इनिशिएटिव? At the outset, I owe to congratulate ITV for this very thoughtful initiative and which is very meaningfully, incidentally happening on the occasion of the International Literacy Day. And I think there could not have been a better tribute to the cause of literacy, particularly literacy among the lesser privileged, when the International Literacy Day is marked with the resolve to be carried on jointly by the Rotary International and ITV, or in other words the Learn Action and Rotary International, to provide literacy to 1 lakh children of the martyrs of armed forces or paramilitary forces, the children of the parents lost to COVID-19 epidemic or to terrorism or to natural calamities like floods. At a time when Prime Minister Narendra Modi is given a special impetus to both literacy as well as education and has taken a revolutionary step to revise the education policy of India and has come out with a new education policy which has several new dimensions which are suited to the requirements and the contours of the emerging India of 21st century. I think it is the responsibility of every right-thinking citizen to contribute to this cause, and therefore I have to once again congratulate Learn Action and Rotary International for having come forward to become a part of this crusade, which will be a crusade not only for literacy in the literal sense, but also literacy in the wider sense, including the digital literacy, which Prime Minister Modi has been emphasizing right from day one. All right, Jitendra ji, let me ask you this. PM Modi has spoken at length about education. How can Team India help in realizing these goals? Responsibility of Team India and responsibility of every right-thinking citizen would be to carry forward to the logic conclusion the new education policy given to us by Prime Minister Modi. And let's not forget, having lived with the earlier education policy for decades together, it required tremendous amount of political will and also courage and courage of conviction to make amends. And this conviction, this courage and this political will has been demonstrated abundantly by Prime Minister Modi. Now we are going to have a new education policy which leaves lots of liberties
in the area of education, which will take into consideration the aptitudes of the youngsters, which will also give them the freedom to choose their stream of learning, also to experiment with more than one stream of learning, and then also revert back to their more preferred stream. And I think this will not only be in the direction of more of vocational oriented education, more of self-livelihood oriented education, but also more in tune with the growth of New India as a frontline nation in the community of world. मगर एक और महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा इस मौके पे जितेंद्र सिंह जी, हाउ डू वी ट्रांसलेट द एड्यूटेक रेवोल्यूशन टू रीच द अंत्योदय? It has been said by the Prime Minister right from the beginning that each of his reforms would be sought to be carried to the last man in the last queue, which is also in keeping with the concept of Antyodaya. And therefore, the new education policy will also meet its ultimate success when it is carried to the last man in the last queue, in the last most corner of the country, in the remotest and far-flung area of this vast Indian peninsula. Okay, Jitendra Singh ji, as you know, Rotary is running its India Literacy Mission. How do we maximize the impact from initiatives from networks like Rotary? Rotary has been running its literacy campaign for a number of years, and I'm sure, and I also hope and I'm confident that Rotary, given its past background and also its past record, has the capacity and the potential to carry forward and to reorient its plans to suit the new education policy of Modi's India, and also to carry it to every corner of the world and the country. एक आखिरी सवाल फिर मैं आपसे करूंगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सरकार की नई एजुकेशन पॉलिसी जिसके बारे में काफी विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बताया है, उसका लक्ष्य क्या है? व्हाट इज इट्स अल्टीमेट एम? The objective of every education policy is to turn out good human beings, better human beings, good citizens, better citizens who can serve the cause of the nation, who can serve the cause of the motherland where they are born, and who can ultimately serve the cause of humanity. All these lessons were brought back to us, brought home to us during the most difficult, trying times of COVID. And I'm sure this also will be our resolve to make our education oriented to achieve all these higher goals of life. जी, बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, फर्स्ट इन क्लास मिशन लॉन्च करने के लिए और अपने विचार इंडिया न्यूज के दर्शकों के सामने रखने के लिए। देश की आजादी के 75वें साल में हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस खास वर्ष में रोटरी इंटरनेशनल के सहयोग से 1 लाख बच्चों को क्वालिटी शिक्षा देने का संकल्प लिया गया है। हमारे साथ रोटरी इंटरनेशनल के अध्यक्ष शेखर मेहता जुड़े हुए हैं। जी हां, शेखर मेहता का खास फोकस सरकार और कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी बढ़ाने पर रहता है, खासकर उन संस्थाओं के साथ जो रोटरी के कार्य क्षेत्रों में काम कर रही है और जो टेक्नोलॉजी में निवेश कर रही हैं। फर्स्ट इन क्लास मिशन के तहत बच्चों को ई लर्निंग सपोर्ट देने की ये जो पहल उन्होंने आज लॉन्च किया है, जिसका आगाज हो चुका है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, उसको उन्होंने हाथों हाथ लिया और इस मुहिम का हिस्सा वो बन गए। हम चाहेंगे कि वो भी इस खास मौके पर अपने विचार रखें। ओवर टू यू शेखर मेहता जी। दोस्तों, हम आज अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं क्योंकि कुछ लोगों ने अपनी जानें देश की सेवा के लिए दी है। They gave their todays for our tomorrows. It is time that we also give back something in return. So, Rotary International in India, the Justice Tankha Memorial Institute and Learnacation have come together to give online education to 1 lakh children of martyrs across India. Those who have lost their lives in the line of duty, we need to show our respect to them, and this is our way of showing respect. These children will be provided some of the best audiovisual content online
There will be teacher support. They will be provided this for a long period of time. Whatever tools need to be given will be given to them, and Rotary is committed to this, and I'm very happy that as President of Rotary International, I have got this opportunity along with Learnication and Justice Memorial Tankha Institute, that we are able to give back something to people who in fact gave their biggest sacrifice, their own lives, so that our lives could be safe. Blessed that we are able to make this little contribution for their big sacrifice. I hope these children will grow up and become outstanding citizens, and we will feel nice that we have played a very little but a meaningful role in their lives. Namaskar, Jai. बहुत शुक्रिया आपका शेखर मेहता जी इस इंसाइटफुल मैसेज के लिए। मिशन फर्स्ट इन क्लास के जरिए 1 लाख जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाई का संकल्प लेने में जस्टिस तनखा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर स्पेशल चिल्ड्रन भी साथ जुड़ा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे साथ इस वक्त राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील विवेक तनखा जी हैं। उनसे हम जानते हैं कि वो इस मिशन को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, वो इस मिशन से क्यों जुड़े। विवेक तनखा जी, हम आपका सीधा रुख करते हैं। आज 8 सितंबर वर्ल्ड लिटरेसी डे है, जो कटा हुआ होता ना आज, और ये वर्ष हमारा 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस भी है। हम लोग ने, जब मैं कहता हूँ हम लोग, मतलब हमारे साथ कार्तिकेय शर्मा ITV ग्रुप के जो हेड हैं, रोटरी इंटरनेशनल, अब उसमें हम रोटरी इंटरनेशनल अध्यक्ष शेखर मेहता जी, रोटरी इंटरनेशनल डायरेक्टर महेश कोटबागी जी, रोटरी इंटरनेशनल फॉर्मर डायरेक्टर और लिटरेसी प्रोग्राम के जो मुखिया हैं कमल सांघवी जी, और अनेक और रोटेरियंस, फ्रेंड्स, NGOs, सब ने साथ बैठ के मंथन किया और एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि इस वर्ष हम लोगों को बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। वैसे भी मेरे लिए बच्चे प्राथमिकता हैं। हम उन बच्चों की मदद करना चाहते हैं जो अपने माँ बाप के प्यार से वंचित हो जाते हैं। पिताजी फौज में थे, पिताजी पुलिस में थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस में थे, देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दे दी, उनके बच्चे हैं। कोविड में बच्चे महरूम हो गए, वैसे भी बच्चे हैं। तमाम रेड कॉरिडोर और जो कश्मीर में इंसर्जेंसी हुई, कितने सारे बच्चे महरूम हुए। तो हम इन बच्चों के लिए, और इसी तरह जो भारत में मेधावी छात्र हैं पर गरीब हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं, व्यक्तित्व भी उनका अच्छा है, ऐसे इन बच्चों को हम लोग चिन्हित करें, सेलेक्ट करें पूरे देश में। और ऐसे हम 1 लाख बच्चों को चिन्हित और सेलेक्ट करना चाहते हैं और उनको हम ई-लर्निंग का प्रोग्राम लोड करके एक टैब में दें। ये हमारा गिफ्ट होगा 75th ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस का, और इसको हम उन बच्चों को पहुंचाएं जो अपनी एजुकेशन के बाद इसका उपयोग करके और अच्छे से एजुकेट होंगे और अच्छे से उनको सब्जेक्ट की समझ आएगी। इसको एक प्रकार से हम अपना प्रोग्राम इस प्रकार से भी बोलते हैं, फर्स्ट इन क्लास। मतलब हम चाहते हैं ये बच्चे सब अग्रणी हैं और आगे बढ़ें, अच्छे मार्क्स पाएं, अच्छे कोर्सेज करें, अच्छे कॉलेजेस में जाएं। तो इस सब के मद्देनज़र हमने ये प्रोग्राम आज लॉन्च करने की बारे में सोचा है और कर रहे हैं। और ये क्योंकि लिटरेसी डे से कनेक्टेड है, इसलिए आज कर रहे हैं। उसके अलावा हमने कहा चलो इसको कल से स्टार्ट करें। कल 9 तारीख है, कल हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी की 98th बर्थडे है। वो शंकराचार्य जी बद्रीनाथ के भी शंकराचार्य हैं, द्वारका के भी शंकराचार्य हैं, और एडवांस्ड एज भी है जो उनकी। हम लोग सब उनके असीम आशीर्वाद के पात्र भी रह चुके हैं, सबके सब। तो हम चाहते हैं कि उनकी इस वर्षगांठ पे हम लोग 2 काम करें। एक तो 1000 ई-लर्निंग का टैब, प्री लोडेड टैब, हम उन 1000 बच्चों को आइडेंटिफाई करके मध्य प्रदेश, स्पेशली गोटेगांव, जबलपुर डिवीजन और आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में चिन्हित करके, और पूरे मध्य प्रदेश में भी हमारा एरिया है, हम उन 1000 बच्चों तक ये अपना टैब का लर्निंग प्रोग्राम पहुंचाएं। और ये फ्री होगा, इट विल बी अ गिफ्ट
from Rotary and ITV group and all of us. और दूसरा जो एक स्कूल है स्वामी जी का गोटेगांव में, जो उनके मठ है जहाँ पर ज्योतेश्वर, वहाँ पर एक स्कूल है, वहाँ पर 1200 बच्चों की शिक्षा होती है और ये सब ट्राइबल और गरीब बच्चे हैं, विलेज बच्चे हैं। वो स्कूल जैसे एक नॉर्मल स्कूल होते हैं विलेजेस में, अभी उस तरह का स्कूल है, 1200 बच्चे हैं। मगर तो हमने रोटरी ने निर्णय लिया कि हम उस स्कूल को स्मार्ट स्कूल बनाएंगे, उस स्कूल की हर क्लास को स्मार्ट क्लास बनाएंगे, उसको एक नया आयाम देंगे, एक नया एजुकेशन का कंटेंट देंगे और उन बच्चों में से जो मेधावी होंगे उनको और भी टैब के थ्रू अदर वेज में हम लोग मदद करेंगे। तो ये हम लोग का एक प्रयास है। ये प्रयास इस देश के बच्चों के लिए है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो असहाय होते हैं, जिनको शिक्षा की ज़रूरत है, शिक्षा की भूख है, मगर शिक्षा उन तक पहुंच नहीं पा रही है। और मैं इसके लिए ITV ग्रुप के MD कार्तिकेय जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम की रूपरेखा के लिए बहुत मेहनत की। इसी तरह मैं रोटरी को बहुत धन्यवाद देता हूं, जो इस प्रोग्राम में हम लोग से जुड़ के काम कर रही है और एक प्रकार से रोटरी हमारे लिए एक ताकत है, एक संबल है। तो मैं इसको हम लोग एक बच्चों के रूप में एक इस प्रोग्राम का हम लोग नेम दे रहे हैं फर्स्ट इन क्लास। मतलब ये सब बच्चे वो हैं जिनको हम चाहते हैं दे मस्ट कम फर्स्ट इन क्लास, सो दैट ये बच्चे गरीब ज़रूर हैं, असहाय ज़रूर होंगे कुछ हद तक, बट हम उनको सामर्थ्य बनाएंगे। शिक्षा सबसे बड़ी एक वेपन होती है सामर्थ्य बनाने के लिए, और ये सफल व्यक्ति बनेंगे, अच्छे व्यक्ति बनेंगे, सक्सेसफुल व्यक्ति बनेंगे इन द टाइम्स टू कम। ये हमारी आशा है, जिससे हमारा देश और स्ट्रेंथन हो। मुझे इस प्रोग्राम में बुला के आपने मुझे ऑनर किया है, क्योंकि ये इतना पायस और अच्छा प्रोग्राम है। इससे जुड़ने में किसी को भी खुशी होगी, और मैं चाहता हूँ कि हम लोग सब इसी तरह अपने देश की सेवा करें, अपने लोगों की सेवा करें और स्पेशली बच्चों की सेवा करें। थैंक यू। जय हिंद। बहुत शुक्रिया आपका विवेक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। फर्स्ट इन क्लास मिशन को रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन का सपोर्ट मिला है। देश में पूर्ण साक्षरता और क्वालिटी शिक्षा देने के लिए रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन टीच प्रोग्राम चलाता है, जिसके तहत ये संस्था ई-लर्निंग को भी बढ़ावा देती है। जी, रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन के चेयरमैन कमल सांघवी से जानते हैं हम सीधा कि फर्स्ट इन क्लास मिशन को वो किस तरह से देखते हैं। ये मिशन जो है ये किस तरह से हमारे भारत की तस्वीर बदलेगा, बच्चों की तस्वीर बदलेगा, सीधा उनसे जानते हैं। गांधी जी ने खूब कहा है कि अगर युद्ध करना है तो युद्ध करें इलिटरेसी के साथ। नेल्सन मंडेला जी ने भी कहा है कि एजुकेशन इज द बिगेस्ट टूल फॉर ब्रिंगिंग चेंज इन द वर्ल्ड। ये दो महारथियों की कहावत को मद्देनज़र रखते हुए रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन ने एक बहुत ही अच्छा एजुकेशन प्रोग्राम का निर्माण किया है, जिसका नाम उन्होंने टीच रखा है। T is for teachers training, E is for e-learning, A is for adult education, C is for child development and H is for happy school। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम गवर्नमेंट की मदद कर रहे हैं ताकि हमारा देश टोटली शिक्षित हो जाए। कुछ महीनों पहले जब कोविड वॉज वेरी एक्टिव, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन को अप्रोच किया था कि चलो एक ई-लर्निंग प्रोग्राम का आप निर्माण करें, ई-लर्निंग प्रोग्राम बताएं, ताकि जो बच्चे एजुकेशन से वंचित है, घर में हैं और स्कूल नहीं जा पाते हैं और पढ़ लिख नहीं सकते, उनके लिए एक ई-लर्निंग प्रोग्राम किया जाए NCERT के पुस्तकों या करिकुलम के मुताबिक। रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन रोज टू द चैलेंज और 6 महीने के अंदर में हमने एक ई-लर्निंग प्रोग्राम का निर्माण कर दिया है, जो आज ही विद्या चैनलों के माध्यम से 12 चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट उसे बीम कर रही है, जिसके माध्यम से 15 करोड़ बच्चे, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे शिक्षा का ग्रहण कर रहे हैं। ये प्रोबेबली दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ई-लर्निंग प्रोग्राम है, और हम और हर पहलू पे हम काम कर रहे हैं लिटरेसी के पूरे देश में। 8 तारीख को वर्ल्ड लिटरेसी डे है, तो हमने सोचा कि चलो एक प्रोग्राम का निर्माण किया जाए।
तो जगत गुरु शंकराचार्य जो द्वारकाधीश है, उनके आशीर्वाद से, और कार्तिकेय शर्मा जी है जो एमडी हैं आईटीवी ग्रुप के, और विवेक तनखा जी हैं जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और जस्टिस तनखा फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं, हम सब ने मिलकर ये सोचा कि चलो हाथ मिलाएं, देश को और शिक्षित करें। हमने एक बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम का निर्माण किया है जिसमें हम उन बच्चों की मदद करना चाहते हैं जिसके माता पिता देश की सेवा करते करते शहीद हो गए। आर्म फोर्सेस के बच्चे हैं, पुलिसमैन के बच्चे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के बच्चे हैं, एंड कोविड वॉरियर्स के बच्चे हैं, एंड ऑल्सो उन बच्चों जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के बच्चे हैं, उनकी मदद करें ताकि वो भी शिक्षा की नई प्रणाली है, जो एक डिजिटलाइजेशन, एक नई प्रणाली उभर के आई है इस कोविड के वक्त में, तो उनकी मदद करें बाय गिविंग देम टैबलेट्स। वी आर गिविंग देम टैबलेट्स ताकि वो भी इस नवीकरण के माध्यम से शिक्षा का ग्रहण करें अपने गाँव में बैठ करके। सो 1 लाख टैबलेट का हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इन बच्चों को, जैसे मैंने कहा, जो देश के शहीदों के बच्चे हैं। उसके साथ एक और प्रोग्राम का हमने निर्माण किया। ये प्रोग्राम है कि बहुत सारे बच्चे बिकॉज ऑफ बैड आई साइट, क्योंकि उसकी आंखें कमज़ोर हैं, वो पढ़ लिख नहीं पाते हैं, टीवी से पढ़ नहीं लिख पाते हैं, स्कूलों में पुस्तक से पढ़ नहीं लिख पाते हैं, तो उनके लिए हम लोग ने विजन स्प्रिंग के साथ हाथ मिला करके डिसाइड किया है कि 1 लाख बच्चे को चश्मा या स्पेक्टिकल्स देंगे, नंबर्ड स्पेक्टिकल्स, जो उसके मुताबिक होगा। They will be, each spectacle will be to the need of every child, and this will be also, we are starting this program on the 8th, on the World Literacy Day. इसके साथ साथ एक और प्रोग्राम का निर्माण किया है कि जगत गुरु शंकराचार्य के गांव में, गोटे गांव में एक स्कूल है जहां पे 1200 ट्राइबल बच्चे पढ़ते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि भाई वो भी बच्चे वैसी सी शिक्षा ग्रहण करें जैसे हम शहर के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसलिए हमने ये प्रण लिया है और तय किया कि वो स्कूल की जितनी भी क्लासरूम है उसको डिजिटलाइज कर दिया जाए, उसमें उसे स्मार्ट क्लास बना जाए और उसमें ई लर्निंग प्रोग्राम लोड कर दिया जाए उस टैबलेट की तरह। उस टैबलेटों में 1 लाख टैबलेटों में भी हम लोग ई लर्निंग का प्रोग्राम जो एनसीईआरटी के माध्यम से हम बीम कर रहे हैं आज पूरे देश में, वही प्रोग्राम स्कूलों में भी स्मार्ट क्लासेस में, ई लर्निंग किट में, टीवीज़ में उसे लोड करके उन बच्चों को प्रदान करें ताकि वे बच्चे गांव में भी रह के शहर के बच्चों की तरह शिक्षा की प्रणाली कर सकें। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन इज़ नो मोर अ लग्जरी, एजुकेशन इज़ द नेसेसिटी एंड द बर्थ राइट ऑफ एवरी चाइल्ड, और ये हमारा दायित्व है, हर सिटीज़न का दायित्व है कि हम अपने देश को पूरा शिक्षित करें। अगर इफ़ यू वांट आवर कंट्री टू बी अ प्रोग्रेसिव कंट्री, इफ़ यू वांट आवर कंट्री टू बी a world leader in the world, it is absolutely important that each and every citizen, nahi bache but also the adults, are totally literate in our country. So I ask each one of you citizens, let us join hands and help our government to educate each and every citizen, every child of our country, and make our country totally literate in the next 5 years. Thank you. जी कमल जी, बहुत शुक्रिया आपका इस मौके पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। इस बीच दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि रोटरी इंटरनेशनल के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर महेश कोटबागी भी इस खास मौके पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम चाहेंगे कि इस मिशन के बारे में वो भी अपने 2 शब्द रखें। ओवर टू यू सर। We recently celebrated our 75th year of independence of this nation. The great leaders like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, V.O. Chidambaram, Bal Gangadhar Tilak, Chandrasekhar Azad, Bhagat Singh, Vinayak Savarkar, Jhansi Ki Rani, Sardar Patel, and so many of them sacrificed their life to get this nation secured and safe. But the legacy was carried by our armed forces people. And then recently, when I met Member of Parliament Sri Vivek Ji Tankha and Kartikeya Sharma of the News X, these both people joined Rotary India, and then we had a dream come together. Let us support the 1 lakh children of martyrs from Army, Navy, and Air Force and Border Security Force. They are the people who have safeguarded our lives
and made it so comfortable. How can we forget that? We thought, let their children get the access of the digital world. Today, the e-learning module and the post-pandemic issue is knowledge is becoming easier and easier through the e-tabs and the e-learning modules. The barcodes, the blogs, the tweets, the iPods, the iPod castings. I think today there is a revolution which is happening, like a reading ability through the Kindle and the flip charts. We thought, let the knowledge access of the encyclopedias, let the world news, let the animation, let the audio visual formats, let get that access to our martyrs children and make them smart citizens of this country. When we are so patriotic for this country, let our martyrs children also become the smart street children who are at par with the global world. Launching this program on the World International Literacy Day, we are so glad and happy, and that's the reason we all are here together. Let us enjoy this particular day of World Literacy Day today together. Namaskar and Jai Hind. बहुत शुक्रिया आपका महेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। फर्स्ट इन क्लास मिशन के तहत बांटे जाने वाले 1 लाख टैबलेट लर्निकेशन के बनाए एड्यूटेक से लैस होंगे, जिसमें नर्सरी से लेकर 12वीं तक का कोर्स सपोर्ट मिलेगा और वो भी कई भारतीय भाषाओं में और बाइलिंगुअल लर्निंग के साथ। इस मुहिम को सफल बनाने के लिए ITV फाउंडेशन ने रोटरी मिशन और जस्टिस तनखा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर स्पेशल चिल्ड्रन के साथ हाथ मिलाया है। आखिर में हम ITV नेटवर्क के फाउंडर कार्तिकेय शर्मा जी के पास चलेंगे। उनसे आग्रह करूंगा मैं कि वो इस मिशन पर अपना विजन भी रखें। कार्तिकेय जी, ओवर टू यू। मैं सबसे पहले रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन, जस्टिस तनखा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर स्पेशल चिल्ड्रन और ITV फाउंडेशन की तरफ से आप सबों का जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो सब लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, जिनकी वजह से ये प्रोग्राम फर्स्ट इन क्लास आज एक रियलिटी बन पाया है। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी का, जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर आज इस कार्यक्रम को इनॉग्रेशन किया है और शुरुआत की है। ये एक बहुत ही अच्छी सोच का प्रतीक है, जिसमें रोटरी, तनखा फाउंडेशन, ITV फाउंडेशन ने मिलकर शेखर मेहता जी, विवेक तनखा जी, डॉक्टर कोटबागी, कमल सिंघवी जी, इन सब के नेतृत्व के अंदर एक ऐसा कार्यक्रम शुरू किया है जो कि प्रतिभाशाली बच्चों को पूरे हिंदुस्तान से, अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग जगहों से आइडेंटिफाई करके उनको एक अच्छे, सफल, प्रबल फ्यूचर की तरफ ले जाने के लिए लर्निकेशन ने ये प्रोग्राम शुरू किया है। बहुत शुक्रिया आपका कार्तिकेय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो ये महत्वपूर्ण पहल जिसका नाम है फर्स्ट इन क्लास, इसका आगाज हो गया है, इसकी शुरुआत हो गई है। हम इसकी पल पल की जानकारी आपको देते रहेंगे कि कैसे ये जरूरतमंद बच्चों तक मदद पहुंचाएगी। फ्रंटलाइन वर्कर्स, शहीदों के बच्चों तक ये जो ई-लर्निंग टैबलेट्स हैं वो पहुंचेंगे और वाकई में भारत का चरित्र, जो न्यू इंडिया का चरित्र है, बदलने की कोशिश करेंगे। वक्त हो चुका है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।